And these one over here, they could be reduced by hydrogen or by electrolysis of aqueous solutions. Okay? These one were reduced by carbon, and these ones, unka they you had to do electrolysis of molten electrolytes. Okay? So we did the extraction of aluminium last time. Now, extraction of aluminium was, what did we do in extraction? That this is zinc, aluminium. So in aluminium extraction, you had ore bauxite, or you dissolve the bauxite. It had impurities like iron oxide, and aluminum oxide is amphoteric, so it would dissolve in NaOH. But iron oxide was basic; it did not dissolve in NaOH. तो आप ना वो Fe2O3 को filter out कर देते थे because it wasn't dissolving. And then you did the electrolysis. Electrolysis was that the aluminum ions were gaining electrons and the oxygen ions were losing electrons to form oxygen. And so we did all of this, okay? And I told you that cryolite was added to lower the melting point, to lower economic cost. We studied that in detail as well. I said, anyways, you formed aluminium. Now, once you've formed aluminium, so some of the uses of aluminium that we are going to talk about. I said aluminium and its uses. Now, aluminium is really good as a metal because it doesn't rust. Uh, I mean, there's some properties, very useful properties. Number one, TK doesn't rust, and we've already studied why it doesn't rust. क्योंकि उसके ऊपर एक layer होती है Al2O3 की, ठीक है, that protects it. Uh, and we've studied that. As a second is that it's a very good conductor of electricity. अच्छा, it's a very good conductor of electricity. अच्छा, पहले तो first वाले के ऊपर doesn't rust. So since it doesn't rust, what are you making out of aluminium? You're making a lot of things now out of aluminium. Even your cooking utensils, car bodies are made from aluminium. Uh, Doors, windows, etc. They're made. But steel or iron को छोड़ दिया. Most of them are made from doors and windows. Lots of construction things are made from aluminium because it doesn't rust. I said it's a very good conductor of electricity. Why is it a very good conductor of electricity? Because aluminium has three delocalized electrons. Okay? In the metallic lattice, it has more delocalized electrons. It loses three electrons. So, so the amount of electrons that, okay, bhaiya. So the amount of electrons that are lost in the structure, they're a lot. Okay, well, if you look at uh, metallic lattice of aluminium, there would be too many delocalized electrons because the aluminium atom, when it forms an ion plus 3 ion, they are going to be a lot of delocalized electrons. Each one is going to be producing a lot of electrons. It's going to be losing a lot of electrons. Okay? So lots of delocalized electrons. So it's a very good conductor of electricity. And because of that, it's used in high power transmission. तो आपके जो घर है ना उसके बाहर जितने भी वो पाइलन्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी पाइलन्स और हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस एंड ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं, ठीक है, they all have this silverish wire which is basically aluminium. एक तो वो rust नहीं करेगी, उस पर बारिश गिरेगी, ठीक है, nothing would happen to it, it's not going to rust. So, and secondly, it's a very very good conductor of electricity. अच्छा, then there's another thing that it's also a good conductor of, अगर इतने ज्यादा delocalized electrons है ना, इस्लाम से इस्लाम इतने ज्यादा delocalized electrons है तो electrons इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है, so they can conduct heat very well as well. So it's a very good conductor of heat as well. Like उससे पहले I have to add one more thing, which is that aluminium is low density.
Aluminium is also relatively very light. So since it's very light, you make planes out of them. So airplanes are made out of aluminium. एंड हसन हम एल्यूमिनियम के यूजर्स कर रहे हैं मतलब कुछ भी नहीं किया Makes उसकी यूजर्स किए हैं ठीक है इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूँ अच्छा व्हाट एल्स प्लस एल्यूमिनियम इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल why because it has more delocalized electrons so since so a lot of your cooking utensils are also made from aluminum pans pots etc they're made out of aluminum डजन रस्ट के अंदर ना आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हो कि विंडोज़ वगैरह तो था ये जो आपके कोक वगैरह के कैंस हैं दे आल्सो मेड फ्रॉम they're also made from aluminium क्योंकि they don't rust they don't react एल्यूमिनियम फॉयल होती है ठीक है अगर वो पता हो कि किचन के अंदर यूजली एल्यूमिनियम फॉयल होती है कोई चीज़ रोस्ट करनी होती है व्हाट यू डू इज यू पुट इट इन एल्यूमिनियम फॉयल बिकॉज इट कंडक्ट्स हीट वेरी वेल और वो रिएक्ट नहीं करेगा ठीक है सो रिमेंबर ऑल ऑफ दीज यूजर्स और प्रॉपर्टी के साथ ना मैच भी करना है लो डेंसिटी एक्सेट्रा ठीक है इज दिस क्लियर राफे मिनाहिल सारा वो क्लियर है yes, yes. अच्छा Yeah. now the next thing अच्छा next thing is now we're done with extraction of metals okay we don't have to do anything more about extraction of metals we've covered everything uh, so what the next thing that we're going to do is we're going to talk about the decomposition so we're going to talk about the decomposition of metal carbonates and nitrates so decomposition is the breakdown you heat the substance and the substance would decompose so the first thing is I'm going to talk about carbonates any carbonate would decompose pretty much in the same way they would decompose into an oxide, a metal oxide, plus carbon dioxide. So metal oxide plus carbon dioxide. If you have, let's say you have any other carbonate, FeCO3, same thing would happen. It would form FeO plus CO2. ठीक है metal oxide plus if you have copper carbonate, same thing would happen. It would form copper oxide plus CO2. So every time all carbonates pretty much decompose in exactly the same way. Metal oxide plus carbon dioxide. And the thing about them is that metals that are reactive, they carbonates, they decompose with a lot of difficulty. They need heat. Every time you want to decompose a carbonate, you would have to heat. You would have to heat the substance. So every carbonate has a decomposition temperature. For example, if 1000 degrees centigrade is the decomposition temperature of a particular substance, so every carbonate decomposes at a particular temperature. If you have so more reactive metals have
higher decomposition temperatures so they have higher decomposition temperature for both carbonates and nitrates. Which basically means it's going to be difficult to decompose or break down. तो जो reactive होंगे ना difficult to decompose, तो जो reactive होंगे ना they would be, अच्छा जो आपके reactive carbonates होंगे metals होंगे उनके उनके carbonates are very hard to decompose. जो unreactive होंगे ना वो बहुत जल्दी decompose करेंगे. And the reason is कि the reactive metals they want to remain reacted. For example, like a sodium carbonate है ना तो sodium carbonate wants to form compounds. It doesn't like to break down. But if you have an unreactive carbonate like silver carbonate, it doesn't like to form compounds in the first place. It's an unreactive metal. It wants to remain in the form of a metal. So जिसकी वजह से it's kind of very unreactive. So it would decompose very easily. So that's the reason. So you have to remember this. ठीक है? ये point clear है? सर इस सिंबल से ये है ना कि रिएक्टिव मेटल डोंट लाइक टू ब्रेक डाउन. क्या? सर सिंबल से ये है ना कि रिएक्टिव मेटल्स डोंट लाइक टू ब्रेक डाउन. हाँ मतलब वो वापस डिकम्पोज नहीं होना चाहते थे वांट टू रिएक्ट. ठीक है तो वो अपनी रिएक्टेड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करना चाहते हैं. अच्छा उसके बाद दूसरी चीज नाइट्रेट्स की डिकम्पोजिशन. अच्छा इवन कार्बोनेट्स की डिकम्पोजिशन हमेशा इट्स नॉट द सेम इक्वेशन. ठीक है फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट सिल्वर कार्बोनेट डिकम्पोजिशन. ठीक है कहाँ पे है सिल्वर कार्बोनेट की भी एक्चुअली वही दी हुई है लेकिन it's a carbonate decomposing into an oxide plus carbon dioxide. ठीक है किधर इन्होंने कोई और दूसरी इक्वेशन की कोटेड नहीं है. जस्ट वन सेकेंड. चलो यही लिखी आ रही है उसको छोड़ो. अच्छा द पॉइंट इज कि मोस्ट ऑफ द कार्बोनेट्स आर गोइंग टू डिकम्पोज इन एग्जैक्टली द सेम वे. तो आपको बस ये जनरल इक्वेशन याद रखनी है. समटाइम्स यू माइट बी गिवन अ डिफरेंट इक्वेशन जो कि इससे मिलती जुलती होगी पर इट वुड बी वेरी सिमिलर. तो कंफ्यूज ना हो जाना वो फिर उन्होंने खुद ही दी होगी. अच्छा the other one metal nitrates, decomposition of metal nitrates. So if you have a metal nitrate उसको भी हीट करोगे ना it's going to decompose in the same way. It would form an oxide और साथ ना वो प्रोड्यूस करेगा NO2 gas plus it's also going to produce half O2 gas. ठीक है ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस होंगी और ये कैल्शियम नाइट्रेट ये ट्वाइस होगा. So that's how a nitrate would decompose. That's how any nitrate would decompose. और इसमें भी वही बात अप्लाई करेगी कि जो मोर रिएक्टिव होंगे ना मुश्किल होगा डिकम्पोज करना. अच्छा इसमें एक्सेप्शन होगी एक्सेप्ट ग्रुप 1 नाइट्रेट्स. दे आर मोर डिफिकल्ट टू डिकम्पोज. तो अगर सोडियम नाइट्रेट होगा ना व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज कि सोडियम नाइट्रेट वुड डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम नाइट्राइट. उसको कंप्लीट डिकम्पोज करना बहुत मुश्किल होगा. मतलब इतना हीट करने के बाद भी ना एक ऑक्सीजन बस निकलेगा बीच में से. इट्स नॉट गोइंग टू ब्रेक डाउन दैट मच. और नाइट्राइट है ये NO2 होना चाहिए. So just remember this. कि normal nitrates they usually decompose and produce metal oxide plus NO2 plus half O2. Whereas group 1 nitrates they're going to decompose in a slightly different way. तो ये सारा आपने याद रखना है. ठीक है Is this clear? और ये important बात है. सर ये हाफ ऑक्सीजन के पीछे क्या थ्योरी है? किसका? हाफ ऑक्सीजन जो लेते हैं. कुछ नहीं है वो बस बैलेंस करने के लिए क्योंकि वरना वो डबल कर दो सारों को. असल में हाफ ऑक्सीजन नहीं है ये हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है. ठीक है जैसा हाफ मिलियन ऑक्सीजन है. मतलब ऑक्सीजन इसका मतलब ऑक्सीजन हाफ नहीं है. हाफ मिलियन का मतलब है कि बहुत सारे ऑक्सीजन है. ठीक है
क्लियर है Yes, कि जी ये 1 सर मिलियन आप ये पूरे रिपीट कर दें। कौन सा हाफ ऑक्सीजन वाला पार्ट? नहीं सर, ये जो अभी आप एक्सप्लेन करते ग्रुप 1 नाइट्रेट। अच्छा वो मैं बस बता रहा था कि नॉर्मल नाइट्रेट्स इस तरीके से डिकम्पोज होते हैं, दे फॉर्म एन ऑक्साइड, दे फॉर्म NO2 एंड दे फॉर्म O2, राइट? जब उसको हीट करते हो। और जो ग्रुप 1 के नाइट्रेट्स हैं ना वो डिफरेंट तरीके से डिकम्पोज होते हैं, वो नाइट्राइट बना देते हैं और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल खाली टूट के अलग होता है। तो ग्रुप 1 क्योंकि दे वेरी रिएक्टिव, दे मोर रिएक्टिव, सो दे वेरी हार्ड टू डिकम्पोज, they don't decompose with they decompose with a lot of difficulty. You need a very high temperature for that. ठीक है, राफे क्लियर है? यस सर। और इसमें ना इसमें भी कुछ इक्वेशंस, कुछ मेटल्स की ना वो डिकम्पोजिशन की इक्वेशंस मेरे ख्याल से वो डिफरेंट भी होंगी, जो बहुत ही अनरिएक्टिव होंगे ना उनकी प्रॉबेबली डिफरेंट है। जैसा सिल्वर एक्सेप्शन है, वो कंप्लीटली डिकम्पोज, वो इतना अनरिएक्टिव है कि वो वापस सिल्वर ही बन जाता है। मतलब NO2 और O2 तो बन रहा है जो कि बाकियों में भी बन रहा है, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट इज सो अनरिएक्टिव कि वो वापस सिल्वर के फॉर्म में ही चला जाता है। तो उसमें भी कंफ्यूज ना होना, मोस्टली मेटल नाइट्रेट्स डिकम्पोज इन दिस वे। जो रिएक्टिव होते हैं वो बड़ी मुश्किल से डिकम्पोज होते हैं, और जो बहुत अनरिएक्टिव होते हैं ना लाइक सिल्वर नाइट्रेट, वो कम्प्लीटली सिल्वर अकेला ही हो जाता है। मतलब सिल्वर चाहता ही नहीं है, वो इतना अनरिएक्टिव है कि वो चाहते ही नहीं है किसी से अटैच हो। ठीक है, तो just to be on the safe side, I can add that as well. कि very unreactive metal nitrates, although you don't need to remember this. So for example, AgNO3 reactor disease में it's right at the bottom, वो completely decompose हो जाता है। वही चीज़ हम बनाते हैं, NO2 और O2 ही बना रहे हैं, और इसको बैलेंस करने के लिए there should be half। ठीक है, I think that's balanced। तो लेकिन वो इतना अनरिएक्टिव है कि वो वापस सिल्वर के अंदर ही कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, that's decomposition। And then we're going to cover cells, जो कि हम पहले मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर we've already covered cells। अच्छा, cells क्या था कि बस वो briefly हम go through कर लेते हैं कि what were cells। Cells were कि galvanic cells और electrochemical cells। Now cells were कि आपके पास, अच्छा कि आपके पास you had two metals of different reactivity and you would connect them together, और let's say बीच में ना एक बल्ब है। ठीक है, let's think of this as a bulb or a voltmeter। ठीक है, अच्छा एक साइड पे Mg है और एक साइड पे जिंक, एक साइड पे let's say कॉपर है। मुझे बताओ कि what would happen? Does anyone remember how did cells operate? sir, कोई Mg will lose it. क्योंकि Mg is more reactive, right? Yes, sir. दोनों में से ना Mg is more reactive, तो इसका मतलब है कि Mg really likes to lose electrons, and Mg would start forming ions and would start to lose electrons. So there would be more and more electrons that would be formed on Mg। ठीक है, उसकी ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और वो सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर ट्रैवल करना शुरू कर देंगे? They would start traveling to the other side। ये क्लियर है हमजा? क्लियर है? आरिज, इज दिस क्लियर? Minahil, so the electrons जी would सर। start traveling to the unreactive side। Now somebody has to gain electrons over there, which is why you need an electrolyte in the solution। ठीक है, you would need an electrolyte, and any electrolyte would do। An electrolyte is something that has ions in solution। ठीक है, so it has ions in solution, for example H+ ions है, या जो मर्जी ions है। ठीक है, it doesn't really matter।
what would happen is those electrons would come over here and they would eventually be picked up by H plus 1. ठीक है, because you need some ions in solution जो उधर से electrons जो आ रहे हैं ना तभी flow होगा, वरना if there is no one willing to gain electrons on this side, no current would flow. So there has to be an electrolyte present. ठीक है, electrolyte is any solution or molten state where free moving ions are present. जो वहां जाके ना इलेक्ट्रॉन्स को पिक कर लें कि उधर से वो भेज रहा है तो आगे कोई हो तो सही ना जो उसको गेन कर ले. यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, द H plus 1 it's diatomic, so 2H plus 1 they would gain 2 electrons to form an H2 gas molecule. And when they form that, तो H2 gas के bubbles आपको नजर आएंगे यहाँ पे. तो हाइड्रोजन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स लेके escape कर जाएगा हवा में. तो वो गैस बन H plus 1 इलेक्ट्रॉन लिए गेन H2 बन गया and they would escape. So anyways, this was electrochemical cell. The thing that would happen is that electrons would flow from the more reactive side to the less reactive side. As electrons would flow from more reactive to less reactive, right? And the other thing was, electrons would flow from more reactive to less reactive, and what else? The other thing was that electrolyte must be present. और इसमें करंट अगर हमने इंक्रीज करना है, हाउ डू इंक्रीज करंट? सर इलेक्ट्रोलाइट को कंसंट्रेट कर दो. ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा H+1 होंगे इधर तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से फ्लो करेंगे क्योंकि उधर गेन करने वाले ज्यादा होंगे. ठीक है, अगर H+1 होगा ही नहीं वो रुक जाएंगे. सो हाउ डू यू इंक्रीज करंट? इंक्रीज वोल्टेज और करंट. उसके अलावा क्या कर सकते हैं? सो यू कैन इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन. So you can increase concentration of ions in electrolyte. अच्छा, what about number 2? किसी को याद है क्या कर सकते हैं? मेटल्स को क्या कर सकते हैं? मेटल्स में क्या चेंजेस कर सकते हैं? सर डिफरेंस अदा कर दो. हाँ ठीक है, Mg एक्टिविटी की का. जगह अगर सोडियम करोगे तो सोडियम ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. इट्स मोर रिएक्टिव्स, राइट? So increase difference in reactivity of the metals. So you increase the difference in reactivity of the metals. So that's another thing that you could do. So pretty much we are done with metals now. ये बस last part था cells का और मेरे ख्याल से हमने सारा कर लिया. पास से बस करते हैं. If you have something missing तो वो उधर cover हो जाएगा. ठीक है, let me just open a few papers. So let's start with the first one. First one तो अभी familiar, ये भी हमने किया था. ठीक है, we did this कि उसने कहा decomposition बताओ strontium carbonate, तो strontium oxide बन जाएगा. इसका फॉर्मूला देख लेना, SR2 plus group 2 में होता है and O is -2, तो ये फॉर्मूला होगा and carbon dioxide is going to be produced. फिर वो कह रहे हैं इस कंपाउंड का क्या नाम है. तो this one is rubidium. RB तो pure tables देख लो, that's going to be rubidium. And the other one is going to be nitride. NO2 minus 1 is nitride. फिर वो कह रहा है कि नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन क्या होती है? A metal oxide, NO2 and O2 is going to be produced, and you can balance this. तो
इधर इसे N4 किया हुआ है तो इधर डबल करना पड़ेगा, तो फिर SRO भी डबल हो जाएगा। बस ठीक है, अब सही है। तो एग्जैक्टली सेम इक्वेशन, ठीक है। क्लियर है सारों को? राफे क्लियर है? मिनाहिल, हसान क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, next one is Yes, sir. next one is when a mixture of sulfur and potassium nitrate is burned and the product dissolved in water, sulfuric acid is formed. तो वो कह रहा है कि sulfur and the other one is potassium nitrate, K+1 NO3 -1, उसको burn कर रहा है and then it's mixed with water. जो भी product है ना उसको mixed with water, ठीक है। we don't know what this reaction is, ठीक है। we've never read any reaction closely resembling this। खैर वो ये कह रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड बना है, लेकिन वो कह रहा है कि इट कंटेन्स अनदर एसिड। अब मुझे गेस करो, बेसिकली तुक्का लगाना है कि उसने कहा ये सब करने के बाद, इसको बर्न करने के बाद, वाटर के अंदर ऐड करने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड बना है। व्हाट कुड पॉसिबली बी अनदर एसिड दैट कुड बी फॉर्म्ड? Nitric acid. Night. ठीक है, नाइट्रिक एसिड ही होगा ना, मतलब HCl तो बन नहीं सकता क्योंकि Cl तो कहीं पे भी नहीं है, या कार्बोनिक एसिड नहीं बन सकता क्योंकि कार्बन ही कहीं नहीं है, ठीक है। तो मतलब बाकी एसिड्स, फास्फोरिक एसिड नहीं बन सकता, फास्फोरस ही कहीं नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज दिस हीट कॉजेस, तो उसने कहा पोटेशियम नाइट्रेट की जरा डीकंपोजिशन की इक्वेशन लिखो। ये ग्रुप 1 का नाइट्रेट है, तो ग्रुप 1 का नाइट्रेट बड़ी मुश्किल से डीकंपोज होता है, पूरा डीकंपोज होता ही नहीं है। तो पोटेशियम नाइट्राइट बनता है एंड O2 इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड, और या तो डबल कर लो या इसको हाफ कर दो। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट, जिंक। ये हमने जिंक किया था, एलॉय जिंक का नेम एन एलॉय ऑफ जिंक, दैट इज ब्रास। और उसे क्या अदर मेटल इन द एलॉय, दैट्स गोइंग टू बी कॉपर प्लस जिंक, ठीक है। हमने जिंक के अंदर, और फिर वो कह रहे हैं मेन ओर ऑफ जिंक इज जिंक ब्लेंड। ये सारा जिंक की एक्सट्रैक्शन जो है, वी कैन गो ओवर इट वंस मोर, कि कहाँ पे हमारी जिंक की एक्सट्रैक्शन, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक है। इधर हमने इसके एलॉय का नाम भी लिखा हुआ है, कॉपर और जिंक, ठीक है। और जिंक ब्लेंड है, दैट्स ZnS, वो उसका ओर है। उसको पहले आप क्या करते हो, रोस्ट करते हो इन एयर, तो इट वुड फॉर्म जिंक ऑक्साइड प्लस SO2, और फिर उसको कार्बन के साथ रिएक्ट करते हो ताकि उसके ऑक्सीजन जो है, कार्बन इज मोर रिएक्टिव, तो उसके ऑक्सीजन छीन लेता है और उसको डिस्प्लेस कर देता है। सो द ओर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और वो कह रहा है सब कुछ ही बताया उसने, कहा तो ZnS is heated in the presence of air, तो जिंक ऑक्साइड ये उसने लिखा हुआ है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, और आई थिंक नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। गिव अ मेजर यूज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, वो तो खैर हमने भी नहीं किया हुआ, लेकिन उस शीट के अंदर लिखा हुआ है ये ब्लीचेस वुड पल्प, जो डेटा शीट नहीं थी उसमें। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज कि एल्यूमिनियम इज obtained by the reduction of aluminum ions to aluminum atoms। तो एल्यूमिनियम आयंस टू एल्यूमिनियम एटम्स, उसने कहा कि इक्वेशन लिखो इसकी, एल्यूमिनियम आयन टू एल्यूमिनियम एटम्स। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए इसने? 3. 3. अच्छा, 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसने कहा इक्वेशन लिख दो इसकी। Now the original method of extraction of aluminium involved in the reduction of aluminum chloride using the, अच्छा वो कह रहे हैं ओरिजिनल मेथड जो था ना, अगर हम वापस जाए ना, तो मतलब एक्सट्रैक्शन में मैंने क्या कहा था कि मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव। कार्बन और हाइड्रोजन को हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कार्बन सस्ते हैं। मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड बाय समथिंग मोर रिएक्टिव, ठीक है। आई मीन फॉर एग्जांपल यू हैव, जैसा वो कह रहा है क्वेश्चन में कि सोडियम इज मोर रिएक्टिव, राइट। तो सोडियम क्या करेगा, उसके सारे Cl, 3 सोडियम होंगे तो वो 3 NaCl बन जाएंगे, और Al पीछे अकेला रह जाएगा। ये क्लियर है सारों को? ठीक है, Yes. मरियम क्लियर है, आरिज इज क्लियर, सारों को क्लियर है? सो मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव, ठीक है। राफे क्लियर है? और मुझे बताओ कि ये रिएक्शन क्यों नहीं करते हैं एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन में, एंड व्हाई इज इट वेरी Sir, एक्सपेंसिव? cheap नहीं है सोडियम। Expensive. ठीक है, मतलब सोडियम आपको मिलता ही नहीं है, मतलब सोडियम तो खुद इतना रिएक्टिव है कि वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आपको कभी मिलेगा ही नहीं।
तो और ये पुराना जो मेथड था ना वो इतना एक्सपेंसिव होता था कि एल्यूमिनियम वाज एट वन टाइम मोर एक्सपेंसिव देन गोल्ड। ठीक है, गोल्ड से भी ज्यादा एक्सपेंसिव होता था क्योंकि वो उसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होता था। अच्छा, हाउ वुड यू obtain सोडियम मेटल फ्रॉम सोडियम क्लोराइड? से इलेक्ट्रोलिसिस, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रोलिसिस, एक्वस का या मेटल मोल्टन? नहीं, मॉडल। मोल्टन। मोल्टन का H+1 नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर एक्वस होगा ना H+1 आ जाएगा फिर। ठीक है, so it's going to be molten electrolysis of molten NaCl। ठीक है, हमजा क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, देन यू हैव के ये वो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम आ गया। ठीक है, उसने मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड क्रायोलाइट ऐड किया हुआ है एंड यू हैव उसने व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ओर? तो बॉक्साइड होता था और बॉक्साइड वाज द इम्प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मतलब रॉक के अंदर यू हैड एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स बट स्पेशली आयरन 3 ऑक्साइड। वो उसने नीचे लिखा हुआ भी है कि the ore is a mixture of aluminum oxide which is amphoteric and iron 3 oxide which is basic। तो उसने कहा इनको अलग किस तरह करोगे? तो आप बताओगे कि जी NaOH पे जब आप Al2O3 डालते हो तो क्योंकि वो एम्फोटेरिक है वो रिएक्ट कर जाता है क्योंकि इट वुड रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस और वो डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर NaOH के अंदर आप आयरन 3 ऑक्साइड डालोगे, आयरन 3 प्लस O-2 तो Fe2O3, तो देयर वुड बी नो रिएक्शन। तो आप क्या करोगे, वो अनरिएक्टेड आयरन 3 ऑक्साइड उसको फिल्टर ऑफ करोगे। ठीक है, यू हैव टू राइट ऑल ऑफ दिस। ठीक है, हमजा, इज दिस क्लियर? राफे क्लियर है? Yes, sir. और ये सारा हमने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, दिस पार्ट। अच्छा, देन यू हैव गिव टू रीजंस व्हाई द क्रायोलाइट कंटेन्स व्हाई द इलेक्ट्रोलाइट कंटेन्स क्रायोलाइट। इसका मैंने क्या बताया था, क्रायोलाइट क्यों ऐड करते हैं? से टेम्परेचर डिक्रीज करना। ठीक है, क्योंकि उसको मिक्सर को मेल्ट करना है, वरना इलेक्ट्रोलिसिस वुड नॉट बी पॉसिबल। द आयंस शुड बी एबल टू मूव अराउंड। तो क्रायोलाइट, वरना इसका ना मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, इट्स अराउंड 2000। क्रायोलाइट ऐड करने से ना इट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट एंड लोअर्स द इकोनॉमिक कॉस्ट एंड हेल्प्स इंक्रीजेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्योंकि द अच्छा, आयंस वुड बी एबल टू मूव फ्रीली। सारी बातें लिख दो। ठीक है, so that's the purpose of cryolite. Then he's saying the mixture of gases involved with the positive electrode includes ये सारी। तो वो कह रहे हैं explain the presence of these gases और equations भी लिखो, include at least one equation। हम सारी लिख देते हैं। अच्छा, फर्स्ट थिंग, एनोड पे कौन सा, मतलब दो मेन आयंस है O-2 and Al+3। तो एनोड पे O-2 जा रहा है and it's losing 4 electrons to form O2। ठीक है, that's the main reaction that's happening। So it is, वो diatomic है तो 2O-2 कर लो -4 electrons and forms O2। अच्छा, now so it forms O2। Now the thing is कि now the thing is ये बाकी तो ऑक्सीजन गैस तो समझ आ रही है, बाकी चीजें कहाँ से आई है? तो उसमें होता था वो जो एनोड खुद बना होता था वो ग्रेफाइट का बना होता था और वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ना बर्न करता था। तो ये जो ऑक्सीजन बना है ना, वो जो कार्बन का आपका इलेक्ट्रोड है ना उसी के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देगा। इट वुड स्टार्ट फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड और इट माइट फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, both of these things are going to be produced because of that। और फिर ये फ्लोरीन कहाँ से है? फ्लोरीन उससे आता था, ये भी हमने उसमें लिखा था, फ्रॉम क्रायोलाइट। क्योंकि क्रायोलाइट Na3Al(F6) है तो वहाँ पे F-1 आयंस आते थे and these F-1 ions would turn into fluorine because they would also lose electrons at anode। और वो भी diatomic है, group 7 is diatomic, they would lose 2 electrons to form F2। this was coming from the cryolite। ठीक है, is this clear? आसान क्लियर है मरियम, जी सर। बिनाहिल? ठीक है, और is this clear? So
अच्छा, मेजर यूज ऑफ एल्यूमिनियम इज द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉट्स एंड पैन्स। क्यों? क्योंकि बड़ा अच्छा वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एल्यूमिनियम फॉइल्स वगैरह, कुकिंग वगैरह। वन रीजन इज द रेजिस्टेंस टू corrosion। एक्सप्लेन कि वो corrode क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके ऊपर एल्यूमिनियम का जो पीस होगा उसके ऊपर there's going to be a layer of Al2O3, so there's a tough unreactive coating of Al2O3। सेवन क्वेश्चन हाँ, सर, ये जब हाफ ऑक्सीजन लिखते समझ नहीं आ रहा मुझे, इसको बैलेंस कैसे हो गया सर? ये कहाँ पे हुआ है बैलेंस? अच्छा वो यार, ये इधर कितने ऑक्सीजन हैं? एक है ना? जी सर। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कितने चाहिए एक करने के लिए? क्या मतलब? इस साइड पे एक ऑक्सीजन है ना, कार्बन जी सर, वहाँ पे मोनोऑक्साइड। भी एक होना चाहिए। तो यहाँ पे भी एक होना चाहिए ना? जी सर। तो अगर मैं 1O2 लेता तो कितने ऑक्सीजन होते हैं? 2 होते हैं। हाँ। तो उसको मैंने हाफ कर दिया, हाफ O2। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है। और रिमेम्बर इस अच्छा, हाफ का अभी कोई रिएक्टेंट से ही कम कर दिया आपने। ठीक है सर। हाँ, मतलब वो डबल कर लो ना यार, डबल कर लो, ये 2 कार्बन्स कर लो, एक O2 कर लो नहीं, या वो ज़्यादा आसान था आपका वाला। सही है। हाँ। अच्छा, suggest 2 other reasons why aluminum is suitable for making pots and pans। Remember, only for pots and pans। 2 reasons। अब वैसे गैस करो क्या रीजन होगी? अभी मैंने एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज बताई हैं। More delocalized electrons and तो उससे क्या होगा? good conductor of good conductor of heat। अच्छा चलो ठीक है, दैट्स वन गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एक तो वो है रस्ट नहीं करता, एक वो है हीट बड़ी अच्छी कंडक्ट करता है। एक और बता दो। खैर एक ही में नहीं, 2 अदर रीजंस। एक और बताओ। Good conductor of has low density। पॉट्स एंड पैन्स में लो डेंसिटी, मतलब जहाज उड़ाने में तो चलो ठीक है, वो प्रॉपर्टी काम आती है। पैन लो डेंसिटी हो या ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब इतना कोई, पैन तो वैसे ही छोटी सी चीज़ है, तो मेरा नहीं ख्याल उसको उठाने में कोई मसला होगा। तो मेरे ख्याल से वो वाला फैक्टर तो नहीं होगा। वन ऑफ द फैक्टर्स वुड बी दैट इट आल्सो, मतलब ये पॉट्स एंड पैन्स को आप क्या करते हो? हीट करते हो ना अवन में। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका? हाई होगा काफ़ी, बट इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। सही है। तो वो भी काम आएगा ना, ये ना हो कि वो एल्यूमिनियम को ओवन में डाला है, एल्यूमिनियम फॉइल को वो सारी मेल्ट कर गई है। सो एल्यूमिनियम हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एज वेल। दैट्स आल्सो गुड कंडक्टर, बल्कि उसमें ऐड कर लेते हैं कि कहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज देखी हैं इसकी। यहाँ पे वो कहाँ है हीट वाला? तो कुकिंग यूटेंसिल्स के अंदर ना वो भी लिख दो कि जी मेल्टिंग पॉइंट बड़े हाई होते हैं। सो दे आल्सो हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, क्लियर है? चलो ठीक है, ये रिवाइज करो, मेटल्स के सारे नोट्स वगैरह अच्छे तरीके से बना लो। ये जो एक्सट्रैक्शन ऑफ, ठीक है हमजा, बल्कि अभी मैं ट्राई करता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड।